and so that if anyone misses Unmute out, nu hai jale nu. Arey, don't talk, please. Please keep yourself on mute. Okay. So we are going to discuss three things in this call. First thing that we will discuss is how many chapters we should study every week, or we should finish every week, every 2 weeks, so that we are able to finish our syllabus by NEET 2023. That is the first thing that we will discuss. Okay. Second thing that we will discuss is what should be our daily timetable to be able to finish the number of chapters that we'll decide. And third thing that we will do is our big target, our goal is to finish our syllabus by NEET 2023. How do we break it into small targets so that आपने हिंदी में कहावत सुना होगा, बूंद बूंद करके घड़ा बढ़ता है. So small micro targets will help you cover the full target. Okay. So first thing, what should be our chapter completion rate every week, every 2 weeks? Now you can think about it like this, that there is a cricket match going on. First team made 199 runs in 20 overs. The second thing, the team that has to come to bat, they have to make 20 in 20 overs 200 runs, which means they have to score 10 runs every over. Similarly, in 2 years, about 2 years, you have to finish 96 chapters in NEET syllabus. So there is a run rate for you as well, right? So one question I want to ask from, if someone can answer, how many weeks are there in a year? एक साल में कितने हफ्ते होते हैं? 52. चलो, good. 52. So in 2 years, we have 104 weeks, and we have consumed already 4 weeks in May. So we have, first thing we will write down, we have 100 weeks remaining in NEET 2023. 100 weeks remaining in NEET 2023. Second thing we will write down is 20 weeks will go into preparing for your school and board exams, right? So which means we have 80 weeks available for NEET preparation. जीरो होना चाहिए ना. चुप हो जाओ यार. Please mute yourself. Thank you. 80 weeks remaining available for NEET preparation. In 80 weeks, we have to finish 96 chapters in NEET syllabus. Finish 96 chapters in NEET syllabus. 96 chapters में we have 50 chapters in class 11th. And 46 chapters in class 12th. Correct? So this means we have to finish approximately, it is a good idea to finish approximately 3 chapters every 2 weeks. So what you can target is 3 chapters means 1 of physics, 1 of chemistry, and 1 of bio. Okay, so this is what I call is our micro target. Micro target. So many notes. Please note it down in your notebook. Okay, I'll start from the top.
100 weeks remaining in NEET 2023, out of which 20 weeks are going to go into your school exam, unit test, midterm, final exam of 11th, then unit test, midterm, pre-board, board exam. 20 weeks will go in that. 20 weeks is around 5 months. So you have 80 weeks available for NEET preparation. In 80 weeks, you have to finish 96 chapters. In 96 chapters, 50 chapters are of class 11th and 46 chapters are of class 12. I'm going by NCERT book. सर थोड़ा और एक बार दिखा दीजिए सर. अरे दिख तो रहा है यार, क्या कर रहे हो सर नहीं यार, प्लीज हल्ला मत करो, दिखाई दे रहा है बॉस. ये क्या दिख रहा है आपको? Guys, can you see this? What I'm showing on the screen? Yes, sir. Yes, Sir, it's available. We are able to see it. All right. Chalo. it's visible. So out of 96 chapters, 11 Aryan, mute yourself. Sorry, sir. Please, guys, mute yourself. I'm seriously saying I find it very, very distracting if noise keeps coming. I will give you an opportunity to ask questions, but please have this discipline to be on mute. So out of 96 chapters, 50 chapters are in class 11th and 46 chapters are in class 12th. Okay. So broadly speaking, if you finish 3 chapters every 2 weeks, you would be able to comfortably complete your syllabus for NEET and do very well in your school exam also. So guys, have you noted this down? So this is our micro target. Every 2 weeks, we have to finish 3 chapters. This is like every over, we have to finish, we have to score 10 runs to score 200 runs in 20 overs. Everyone noted down, I can remove this? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Oh, no. No. All right. Let's keep it for 1 more minute. अभी कोई रोना चालू कर देगा कि इस वजह से मेरा नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ कि मैंने पेपर हटा दिया. कोई बात नहीं. Done? Yes, sir. Yes, sir. Not. Okay. Why is this important? This is important because NEET exam is extremely simple. The quality of paper is so bad that if you'll talk to good faculty, they will tell you that if this kind of exam is being used to select doctors, a lot of patients would have scissors left in their stomach. So the paper is extremely simple. The problem is 2. 1, like in India में सब जगह 1 अनार 100 बीमार का problem होता है. So 16 lakh people write exam for 40,000 seats, government college seats. That is the first problem. Second problem is the syllabus is very big, 96 chapters. If you are going to not prepare properly now, you would not be able to complete your syllabus peacefully. And if you start preparing now, study for 4 to 5 hours a day, you would be able to comfortably complete your syllabus. So the good thing is, if you are sitting here, you become confident that yes, I can start preparing right now. You join some proper online course, start preparing, and you would do very well. And if you wait, if you think 11th, I will take easy, I will start preparing in 12th, then you will not get selected in first attempt in NEET 2023. And there is, if you can get selected in first attempt, nothing like it. So that is the target. We have to try our best to complete our syllabus by NEET exam in May 2023 to crack NEET in first attempt. That is our target. And as I said, it is like a cricket match. Every over 10 runs. If the team is scoring every over 10 runs, even if you are watching a match on television, you also feel comfortable. Even if you are not playing, you are not sitting in stadium, आपको भी लगता है चलो बढ़िया है. इस बार तो रॉयल चैलेंजर बैंगलोर जीतने वाला है. छोटा स्टेडियम है, चिन्नास्वामी स्टेडियम, पार्टी है.
because they are scoring every over 10 runs, and you know that means they will be able to score 200 runs in 20 overs. यहाँ तक सब लोग को clear है? Everyone clear till now? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. चलो आगे चलते हैं. So next thing that we will do is we will make our daily timetable. So I will select one volunteer and I will ask questions from them. Okay. शिवांश शर्मा जी. शिवांश शर्मा बिल्कुल है ना, शक्ल से नीट क्रैक करने वाले लग रहे हैं, तो इनसे पूछते हैं. क्या कहते हो? देखो मोटा सा चश्मा लगा हुआ है और मतलब जबरदस्त सीरियस. क्या कहते हो, है ना? तो शिवांश से पूछता है. अमित कुमार भी लग रहा है, उसकी दाढ़ी वाड़ी बढ़ने लगी है, तो वो भी लग रहा है कि अब है ना बढ़िया तैयारी कर रहा है नीट की, है ना? तो दाढ़ी बढ़ जाए, चश्मा लग जाए, मतलब बाल उड़े हुए हैं, सारे टाइम बेचारा पढ़ रहा है, तो मतलब ऐसे लोग का नहीं, ऐसे लोग का नहीं होता जनरली, मतलब मजाक का, राइट? सो शिवांश ने अपना वीडियो ऑफ कर लिया कि ऐसी तैसी, मतलब नहीं, ठीक है. ओके, सो शिवांश, आई एम गोइंग टू आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम यू. इज दैट ओके? आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. Yes, sir. ऑल राइट. शिवांश, वेयर आर यू फ्रॉम? Sir, Himachal Pradesh. वेयर इन हिमाचल प्रदेश? Sir, Bilaspur. Bilaspur. There is a new AIIMS that has come up in Bilaspur, right? Yes, sir. Bilaspur मंडी के पास में है? Yes, sir. Very good. ठीक है. So Shivansh from Bilaspur is going to answer my questions. Let me see if my sheet is ready. Okay, I think my sheet is ready. So, guys, the purpose of asking Shivansh is not that Shivansh looks like a neat aspirant. The purpose is through Shivansh, I'll be able to demonstrate to everyone. So I will be asking questions from Shivansh and you're going to note the sheet in the notebook. Okay, so this is my sheet. Can you see this? Can you see my screen? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Good. So Shivansh, what we will do is, शिवांश आपको अंग्रेजी अच्छी तरह समझ आती है, कोई टेंशन की बात नहीं है, राइट? Yes, sir. ठीक है. So Shivansh, what we will do is, we have said to ourselves that we will finish 3 chapters every 2 weeks, right? This is what we Yes, sir. said. So what we want to figure out is how much time do we have for studies in 2 weeks. So we want to create an activity chart of 2 weeks. Activities of 2 weeks. Okay? This is what we are going to do. So first question, Shivansh, time available in 2 weeks. How much time God has given us in 2 weeks? Guys, only Shivansh will answer, no one else will answer. Shivansh, how much time God has given us in 2 weeks? Sir, 336 hours. 336 hours. 24 into 14, 336 hours. ठीक है? Okay. Sleep in 2 weeks. Assuming 7 hours per day. So how many hours in 2 weeks? 98. 98 hours. Very good. Okay. Food plus bathroom plus toilet, 3.5 hours a day. So how many hours in, let's say 4 hours a day. So how many hours in 2 weeks? 56 hours. 56 hours. Distraction time. Distraction time. 4 hours per day. And I will actually say 5 hours per day. And when your school start, then you can reduce it to 3 hours per day. Okay. So 5 hours per day. In this time, you can walk,
you can play, you can follow any hobby, you can read novels, or best part, you can gossip with your friends, whatever you want to do. This is the time when you're not studying. So how many hours in 2 weeks? 70 hours. 70 hours. Okay. So time available for NEET studies. So God gave us 336 hours. We consume 98 hours in sleep, 56 hours food, bathroom, toilet, 70 hours time pass. So we have 112 hours in 2 weeks to prepare for NEET. Now, in this time, we have to finish theory. Theory means you watch videos and take notes, plus read NCERT after that. And second thing that we have to do is question practice and revision. So let me mark this in red. Sorry, green. Okay, so what I would recommend is 60% of the time of 112 hours available, let us use this for theory, 0.6 into 112. And remaining time, let's use for question practice. When I say watch videos and take notes, what I mean by this is, if you're going to a physical coaching, though I'm not sure anywhere physical coaching is going on, but let's say you're going to a physical coaching, so someone teaches you, someone explains to you, and you take notes, right? Just one. Someone teaches you and you take notes. Similarly, if you're not going to a physical coaching, you are watching videos. And while watching videos, which means someone is explaining to you, you are taking notes. I specifically want to tell you here, there is a difference between you are watching something, you are watching videos and taking notes, or you are listening to a teacher, physical teacher, and taking notes, versus you are watching videos like a Shah Rukh Khan movie and you took out some topper notes and reading from them. The second thing is perfectly useless. While watching videos or while listening to a teacher in a classroom, you have to take notes in your own language based on what you understood. That is what is useful. Taking someone else's notes is useless. Is this understood? Yes, sir. Yes, sir. भाई लोगों Yes, समझ में sir. नहीं आया, हिंदी में वापस रिपीट कर सकता हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, पर ये बात समझ लो, आपको कोई पढ़ा रहा है वीडियो के थ्रू या फिजिकली क्लासरूम में और आप नोट्स ले रहे हो, दिस इज व्हाट this is. Watch videos and take notes and then read NCERT. ठीक है, तो if everyone has understood, please note this down in your notebook. And we will use this to make a daily schedule. What we will do is, whatever we have written, we will divide it by 14. Guys, please mute कर लीजिए. शिवांश के अलावा सब लोग म्यूट कर लीजिए खुद को. Okay. So guys, what I'm saying is, right now, till your summer vacations are over, you can study for 8 hours a day, 5 hours of theory, 3 hours of question practice. After your school start, reduce your distraction time to 3 hours per day, which will give you approximately another 28 hours of studies. So that means that much time you can give to school, additional time from this, and this should be good enough. So what I'm saying is, this is right now when schools are not going on. है ना? If you want, I can tell you what will happen when schools are going on. 1 minute.
And when your schools are going on, so let us write down insert school time. Let's say 5 hours a day, 6 days a week, so 60 hours of school time, 3 hours a day of distraction. So 3 hours means 42 hours. So what you will find is B2, B3, B4, B5, B6. So this would become your timetable. After that, then you will be able to study for 6 hours a day, 3 hours of theory, 2 hours of question practice. Once your school start, right now, sorry. Huh? Where did it go? Disappeared somewhere. Okay, so once your school start, then you can follow this timetable. Right now, when school is not going on, this much time is available for you for NEET preparation. Guys, please note it down in your notebook. Then I'll explain to you why I have taken so much time writing this obvious thing for you. Written. Sir, written. अरे कोई बात नहीं, जिसने लिख लिया वो शांति से बैठो. Let other people write. Guys, please write it down in your notebook. Let's take 1 minute. 3:28 right now, 3:29. By 3:29, let's write it down in our notebook. Sir, I have a question. Go ahead. Sir, actually, my school has reopened. Sir, it is 5 hours per day. So this is what I assumed here. School time, 5 hours per day, 6 days a week. So 30 hours a week, 60 hours in 2 weeks, right? 3 hours of distraction. So you will get 80 hours for NEET preparation in 2 weeks, which is good enough. I will prove that to you right now. If you get 80 hours in 2 weeks, you can easily finish 3 chapters without any problem. Sir, actually, it is written 4 daily. Like under daily, it is written 4 in school time. That is because I've assumed 6 days a week. School do not happen for 7 days a week, right? Yes, sir. Yes, sir. 5 hours a day and 6 days a week. So I've just put an average. Average on a daily basis, it is 4 hours. Actually, it is 5 hours for 6 days. And 7th day, you don't have any school. And I'm assuming there must be a holiday on second Saturday also. No, sir. We have school on every Saturday. Okay. Okay. All right, guys. So everyone has noted this down? Yes, sir. Yes, sir. Very Yes, good. sir. Very Yes, good. sir. Okay. So, what was the purpose of giving this obvious, basic, simple, such a simple thing? आप सब लोग तो टाइम टेबल फॉलो कर ही लोगे, इतना तो पढ़ ही लोगे, है ना? 4-5 घंटे डेली, बताओ. Yes, sir. Yes, yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So what I want to tell you is what is the good news and bad news. Good news is if you study for right now till summer vacation 8 hours a day, and after summer vacation 5 to 6 hours a day, you will easily finish your syllabus. The bad news is right now there are 100 people on this call.
not more than 15 people, 15, I'm not saying 50, 15 log, 15, not more than 15 people will be able to do it consistently. When I say 100 weeks, which means 700 days, I am expecting what I'm trying to say through this timetable is तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, बर्थडे आ जाए, वेकेशन आ जाए, पेट दर्द कर रहा है, सर दर्द कर रहा है, हर रोज इतना करना. Whatever happens, you have to do it every day. Whatever happens. You should not try to study 15, 16 hours for 2 days and then fall sick for 5 days. So for example, again, let me try and explain to you what I'm saying. Imagine this, Shivansh lives in a big glass house in Bilaspur, and I stay across the road, and I will able to see his study room. So what I see every day, Shivansh gets up at 8 o'clock. He freshens up, he takes shower, then he takes some light thing to eat. Then he studies from 9 to 11. After that, 11 to 11:15, he will take some break. Amit Kumar, please mute yourself here, for God's sake. क्या प्रॉब्लम है बॉस? दोस्त, क्या करूं मैं? कैसे आपका आह्वान करूं, विनती करूं, क्या करूं? Sorry, sir. प्लीज यार ऐसे मत करो, मतलब समझो यार. हाँ, सो इतनी बढ़िया मैं स्टोरी सुना रहा हूं, आप ऐसी तैसी कर रहे हो यार स्टोरी, है ना? सो आई एम स्टेइंग अक्रॉस द रोड. आई एम एबल टू सी शिवांश, एंड व्हाट आई सी इज Shivansh gets up at 8 o'clock. He freshens up, takes shower, changes his clothes. After that, he sits down for studies. 9 to 11, he studies. Then he takes a break of half an hour. Then he studies for 1 hour. Then he'll take lunch. Then he'll sleep for 1 hour. He'll get up, he'll study for 1 hour. Then he'll do some chit chat with his friend for 1.5, 2 hours. इसका कोई बहुत अच्छा दोस्त है जो सोलन में रहता है, वहां पे कुछ पार्टी चल रही होती है, बिलासपुर में फंस गया है ना, तो he calls him up. They chit chat for 2 hours. Then he studies for 1 hour. Then he goes for a walk for 1 hour, or he goes out to play football. After that, he comes back. He studies for 1 hour. Then he'll have dinner. Then he study for 1.5 hours. Then he'll sleep. And every day he does the same thing. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Then again Monday, Tuesday, Wednesday for next 700 days. This is the discipline required. It does not require a lot of studies every day. It requires discipline of some amount of studies every day. But for every of 700 days, whoever is going to be topper in 2023 will have this schedule which I'm talking about. और जिसका selection नहीं होगा वो time pass आदमी है. He will get up at 8 o'clock someday. He will get up at 12 o'clock someday. Someday he will study. Someday he will not study. Someday he will study for 16 hours, then he will fall sick for 5 days. That is not what is required. It requires consistent study. So what I have shown you in this timetable, take a printout, put it in front of your study table. If you're able to follow this, your life would be peaceful. If you're not able to follow this, God help you. I know people who are preparing for 5 times, 6 times. And they will keep preparing, and sometimes their kids will also be writing NEET exam with them because there is no age limit in NEET. समझ में आ गया भाई लोग? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. Yes, sir. Yes, sir. So the question is, Yes, sir. this timetable, is it good news or bad news? Good It is news. both. Good Good news. news. news, sir. Sir, it's a decent news to follow. मुझे तो बैड न्यूज लगती है. मुझे नहीं पता इतना डिसिप्लिन आप में से कितने लोगों में. I don't know how many of you have this discipline. Each of the 700 days, you will wake up at the same time. You will sit on the pot at the same time. You will take shower at the same time. You will change your clothes. You will take breakfast at that same time. You will take lunch at the same time. You will take dinner at the same time. You will sleep at the same time. You will get up at the same time. You will study at the same time. पर जैसा गौतम बुद्धा ने कहा है, मिडिल पाथ है. सोना भी है, पढ़ना भी है, खेलना भी है, स्कूल भी अटेंड करना है. We have to sleep,
We have to study, we have to do chit chat at time pass, and we have to attend school also. We have to do everything. और सब कुछ हो जाएगा, आप अभी से तैयारी चालू करें. There is a good amount of time available. But if you are going to waste your time, God help you. हिंदुस्तान है, यहाँ पे तो सुलभ शौचालय के सामने भी लाइन लगी होती है. गवर्नमेंट कॉलेज की तो बात छोड़ दो, है ना. 40,000 सीट्स, 16 लाख पीपल. यदि आप तैयारी नहीं करोगे तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट कॉलेज की सीट खाली जाने वाली है ना. ठीक है भाई लोग, Yes. चलें आगे. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है यार. I want to ask one question from you. Do you think NEET exam should be conducted? It is so tough on students. आपको लगता है NEET एग्जाम होना चाहिए? Yes, Sir, sir. हमको लगता है Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir, it should be conducted. अच्छा, कितने लोगों को लगता है नहीं होना चाहिए? किसी को नहीं लगता, कोई भी बोलना नहीं चाहता. हालांकि दिल में सबके यही है कि क्या जिंदगी खराब हो रही है. 17 साल की उम्र में ना पढ़ाई करने बैठ गए. इतनी अच्छी नहीं अच्छी होना चीजें चाहिए. नहीं होना चाहिए. ठीक है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मेरा एक पर्सपेक्टिव बताता हूँ. आई टेल यू माय पर्सपेक्टिव व्हाई इट शुड हैपन. द गुड थिंग अबाउट एग्जाम्स लाइक जेईई एंड नीट इज, आपका क्या रिलीजन है, आपके पिताजी के पास कितना पैसा है, आप कहाँ से आते हैं, किसी चीज का कुछ फर्क नहीं पड़ता. द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज आपने कितना मेहनत किया और आपका स्कोर कितना आया. इसी वजह से अंबानी और अदानी के लोग एम्स में नहीं है, नहीं तो वो कहीं पे भी जा सकते हैं. वहां पे तो वही पहुंचता है इस साल जिसका 705 के ऊपर था. ठीक है. सो इन माय माइंड, यदि आप छोटे शहर से हैं, मैं जयपुर से हूं, मेरे पिताजी एक छोटी मोटी नौकरी करते थे, अब तो वो रिटायर हो गए. तो वो छोटी मोटी नौकरी करते थे एक बैंक में. द ओनली वे आई कुड हैव बिकम अ बिगर पर्सन, कुड हैव गिवन अ बेटर लाइफ टू माय पेरेंट, वाज थ्रू क्रैकिंग जेईई. ठीक है. तो मैंने 97 में जेईई क्रैक किया और उसके बाद मुझे आईआईटी दिल्ली में मेरा सिलेक्शन हुआ. उसके बाद मुझे समाज के पेरेंट्स के सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ी, मुझे अपना रास्ता खुद मिल गया. विच इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू यू इफ यू आर एबल टू क्रैक नीट एंड गेट इनटू अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज. आपको घर से एक पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी. आपको 19 साल की उम्र में अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भयानक कंपटीशन के बीच में भी मैं सक्सेसफुल हो सकता हूँ. लोग 50-50 साल के हो जाते हैं, उनको अपने ऊपर विश्वास नहीं होता. आपको 19 साल में खुद के ऊपर विश्वास हो जाएगा कि आप रॉकेट हो, कहीं भी पहुंच सकते हो. So that is why I think an exam like NEET is very good. ये आपका पासपोर्ट है बेहतर जिंदगी के लिए. यदि आप किसी छोटे घर में, छोटे गांव में रहते हो, पेरेंट्स के पास पैसा नहीं है आपका प्राइवेट कॉलेज वगैरह में एडमिशन कराने का, ये आपको उस जगह से निकाल के एक बेहतर जगह पे पहुंचा देगा यदि आप मेहनत करोगे. और नहीं करोगे तो ठीक है, मतलब आपको अपने आसपास लोग दिखाई देते होंगे कि मैं ये कर सकता था, वो कर सकता था, सारे टाइम चाय पीते पकौड़े खाते, है ना. तो इस बात को अपने दिमाग में बैठा लेना. आपके पास एक ऑप्शन ये है, वन ऑप्शन दैट यू हैव इज यू वर्क वेरी हार्ड फॉर 2 years एंड देन योर लाइफ विल बी सेट फॉर नेक्स्ट 50 years. दूसरा ऑप्शन है अपना टाइम खराब करो 2 साल और 50 साल धक्के खाओ. इंसान के डॉक्टर लगाना था, भैंस के इंसान के इंजेक्शन लगाना था, भैंस के इंजेक्शन लगा रहे हैं क्योंकि भाई साहब ने तैयारी नहीं की. वेटनरी का 250 नंबर पे एडमिशन होता है, तो ठीक है भैंस के इंजेक्शन लगा रहे हैं. मैं ये नहीं कह रहा वेटनरी इज अ बैड थिंग, बट यू वांटेड टू डू एमबीबीएस और आप वेटनरी कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपने डिसाइड किया खुद के लिए कि मैं नहीं करूंगा मेहनत. क्या ये बात आप लोग को क्लियर है? पढ़ाई आपको इसलिए करनी Yes, है. sir. Yes, sir. Yes, sir. आप अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं. अभी प्रतीक जाधव जाने जाते हैं, ये जाधव जी का बेटा है. जब एग्जाम में सिलेक्शन हो जाएगा तो प्रतीक जाधव के पिताजी जाने जाएंगे, प्रतीक के पिताजी हैं. ये पहचान होती है. ठीक है. तो ये सब अब आपके Yes, हाथ में है. ऑल ऑफ दिस इज इन योर हैंड. आप सोच लेना, आप इस चीज के लिए मेहनत करो. यदि आपके पिताजी के पास 70 लाख 1 करोड़ रुपया है आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन कराने का, तो मत करो तैयारी, फर्क नहीं पड़ता. पर यदि आपके पिताजी के पास पैसा नहीं है और आपको डॉक्टर बनना है, तो यही एक रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है. कोई बैकडोर एंट्री नहीं होती है.
एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, फॉर दैट मैटर प्राइवेट कॉलेज में भी अभी तो एक ही रास्ता है, मेहनत कर लो, अच्छा स्कोर आ जाए और आपका सिलेक्शन हो जाए। पेपर बहुत इजी आता है, आप सिलेबस खत्म कर लोगे, बहुत आराम से हो जाएगा। Guys, if you have any questions, you can ask me. Otherwise, we'll move forward. So Hmm. I want to ask that how much time like we have to give to chemistry and physics as it is conceptual subject. अभी उस सारे की चीज So का please जवाब हो that. जाएगा, अभी आपको जवाब मिल जाएगा उसका, डोंट वरी अबाउट। Okay, sir. सर हाँ जी। सर आपने जो मतलब अभी तक टाइम टेबल एंड हार्ड वर्क सर व्हाटएवर यू हैव टोल्ड वी आर गोइंग टू फॉलो फॉर क्रैकिंग नीट, बट सर इफ समवन विशेस टू बी इन एम्स will this be the same timetable and the same routine? आपका नाम क्या है? Ananya Das. अनन्या। अनन्या, तो ऐसा है, जब विराट कोहली अगले वर्ल्ड कप की तैयारी करेगा तो वो इस हिसाब से नहीं सोचेगा कि मुझे वर्ल्ड कप जीतना है, सोचेगा, पर वो उसके बाद तैयारी इस हिसाब से करेगा कि आर माई पीपल फिट, डू आई हैव राइट पीपल एट द राइट प्लेस, and he's not going to worry too much about whether they are going to reach the final or not. So what I would recommend is the timetable that I have given, this is enough to get into AIIMS as well. I am again cautioning you, ये timetable 80%, 85% of you are not going to be able to follow daily. I am 100% sure about it. I am 100% sure about the fact that out of 16 lakh people, 14 lakh people who write NEET exam are like India's Olympic team. लंदन ओलंपिक्स में जा रहे हैं, पता है मेडल जीतने का कोई चांस नहीं है, पर चलो माहौल के लिए चले जाते हैं, थोड़ा खेल वेल लेंगे, है ना, और सब लोग पहले क्वालिफाइंग राउंड में गायब हो जाते हैं, 2-3 लोग को छोड़ के। So the 2 lakh people are actually able to follow timetable, and out of that 40,000 people get selected. 14 लाख का तो कंपटीशन में ही नहीं है, सिलेबस खत्म नहीं किया, एग्जाम से 1 महीने पहले मुझे कॉल आएगा, सर मॉर्फोलॉजी में कौन सा पोर्शन पढ़ूं, कौन सा छोड़ दूं। अरे मेरे भाई, ये क्या बात हुई? आप इमेजिन, चलो तो आप कुछ फैक्ट्स और लिख लो नीट के एग्जाम के बारे में, देन विल गो टू द थर्ड थिंग। सर एक्सक्यूज मी सर, और एक बात पूछनी थी सर, दैट इज सर आपने जो टाइम टेबल हम लोगों को दिए हैं लाइक फॉर द स्कूल एंड एवरीथिंग, बट सर व्हाट अबाउट द वीकेंड्स, लाइक वीकेंड्स में सुबह में 5 घंटे स्कूल होता है, फिर इवनिंग को 6 घंटा कोचिंग होता है। अरे नहीं 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 अनन्या, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ध्यान से देखो, व्हेन आई से वॉच वीडियोस एंड टेक नोट्स, दिस इज कोचिंग टाइम, राइट? इफ यू आर गोइंग टू कोचिंग, ओके सर, कोचिंग टाइम डाल दिया ना हमने। अच्छा सर, अच्छा सर। गाइस, बाय द वे 1 मिनट गाइस, एक चीज प्लीज समझ लीजिए, मैंने कोई मैजिकल चीज आपको नहीं बताई है, आप भी थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो आपका भी ऐसा ही टाइम टेबल आने वाला है। मैंने कोई इन्वेंट नहीं किया है ये, मैं बस लॉजिकली चीजों को डाल रहा हूं। आपको इधर उधर घंटे बढ़ाने बता दो, कहाँ पे बढ़ाने कहाँ पे घटाने, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। I believe you need to sleep 7 hours a day to be mentally and physically fit. I believe you have to have distraction time so that you don't get bored by studying daily. क्योंकि पढ़ना तो डेली है। मुझे लगता है खाने के टाइम पे खाना चाहिए, जब आप पॉट पे बैठे तो पॉट के ऊपर बैठना चाहिए, जब नहा रहे हैं तो नहाने का मजा लेना चाहिए। तो हमें बैलेंस मेंटेन करना है, तो मैंने उस हिसाब से टाइम टेबल बनाया है। आप भी खुद भी बनाएंगे तो ऐसा ही बनेगा। ओके सर। So this is not a timetable that I have created for you. मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बता दिया, बट आप खुद भी बनाते तो ऐसे ही कुछ निकल के आता है ना। So, sir, I actually have 2 questions. I have already prepared timetable, but is self-study better than coaching? Both are required. क्योंकि एक सेकेंड, यात्री school पटेल start रुक जाओ, यात्री सुनो। हाँ गाइज, ये वाला जो पार्ट है, वॉच वीडियोस एंड टेक नोट्स, दिस इज द कोचिंग पार्ट। आप कोई कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, आप कोई ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे आपको कोई समझाता है। एनसीईआरटी पढ़ना ये सेल्फ स्टडी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिवीजन करना है सेल्फ स्टडी है, ठीक है? हाँ, and sir, is NCERT is sufficient for score 700 plus and
नहीं, मैंने आपको क्या बोला, आपको पहले वीडियो देखते हुए नोट्स लेना है या आपको कोई पहले समझाएगा, फिर आपको एनसीईआरटी पढ़ना है और उसके बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। Okay. चलो गाइस, एक सेकेंड रुक जाओ। आई वॉन्ट यू टू राइट सर्टेन फैक्ट्स, नहीं तो आप उन वाले फैक्ट्स के बारे में भी पूछते रहते हो। पहली चीज, नीट में एलिजिबिलिटी क्या है? एज एलिजिबिलिटी, द ईयर इन विच यू आर गोइंग टू राइट नीट एग्जाम, उसके 31 दिसंबर को आपकी उम्र 17 साल होनी चाहिए। व्हाट आई एम सेइंग इज, on 31st December 2023 your age should be 17 years to be able to write NEET exam in 2023. Your exam will happen in May, but the eligibility criteria is on 31st December 2023 your age should be 17 years. यदि आपकी उम्र 31st December 2023 को 17 years नहीं होगी, that is the minimum age criteria, then you are not eligible to write NEET in 2023. सही है? ये पहली चीज है। Yes, sir. Second thing, you should have physics, chemistry, biology and English in your class 12. Physics, chemistry, biology and English are compulsory in class 12 to be able to write NEET. इसके अंदर third thing, you should pass all 5 subjects. You should pass all 5 subjects. Additionally, including theory and practical, you should have theory and practical. You should have 50% aggregate in PCB if you are general category and 40% aggregate in PCB if you are other categories. Sir, could you repeat this point? Hello. NEET eligibility, you should compulsory, first thing I wrote was 31st December 2023, you should be 17 years. 31st December 2023, you should be 17 years. Physics, chemistry, biology, English is compulsory. You should pass all the subjects. In physics, chemistry, biology, including theory and practical, you should have 50%, which means out of 300 marks, you should have 150 marks in physics, chemistry, and biology. Which means it could be 48 in physics, 52 in chemistry, and 50 in biology. That is also okay. You are not required to have 50% individually, aggregate 50% child. You can be more than 17 years, it is not okay, but minimum 17 years चाहिए. ठीक है, और अदर कैटेगरीज के लिए 40% है, और कुछ एलिजिबिलिटी नहीं। एक्सक्यूज मी सर। लो नोट कर लो, बोलो। आपने ये 50% एग्रीगेट वाला क्या समझाया था पीसीबी का? पीसीबी में मिला के 300 में से 150 मार्क्स चाहिए बोर्ड एग्जाम के अंदर 12th। ओके सर। आधा। चलो बस प्लीज म्यूट कर लो खुद को, नहीं तो सारे लोग को आपकी कहानी सुननी पड़ रही है। पर्व, क्या करूं, आपको रिमूव कर दूं? म्यूट कर लो। अर्षित जैन, क्या करूं? हरीश जैन रिमूव कर देता। ओके चलो, अरिश को मैंने रिमूव कर दिया। ऑल राइट, देवांशी म्यूट कर लो, अदरवाइज आई रिमूव यू। सर, आई हैव अ क्वेश्चन। हाँ बोलो, क्या क्वेश्चन है? सर, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी मतलब ठीक है? चलिए आप वेट कर लीजिए, नहीं तो आप ऐसे सवाल पूछेंगे। आई एम सॉरी, मतलब मैं अभी जवाब नहीं दे रहा, थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। ऑल राइट गाइस, तो अभी तक हमने वी हैव कवर्ड 2 थिंग्स टिल नाउ। First thing we covered was we have to cover in 2 weeks 3 chapters.
In 2 weeks, 3 chapters. Second thing, we understood our timetable, daily timetable. Now, third thing that we will do is, what we now don't know is, जो हमारे पास time available है, the time that is available with us, which is this time, 112 hours. Can we finish 3 chapters in 112 hours? Can we finish 3 chapters in 112 hours? यही तो आंसर करना बाकी रह गया है ना अब guys. This is what we need to answer, right? Yes, sir. Yes, sir. तो ये तीसरा पार्ट है हमारा, इस पे चलते हैं. तो एक मिनट, let me show you how to find out answer to this question. 1 minute, guys. ठीक है. शिवांश, are you there with me? Yes, sir. Okay. आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है? Are you able to see the screen? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So I will go to neatprep.com. So guys, आप लोगों ने में से has anyone set target on neatprep.com before या नहीं किया आपने पहले कभी target set? No, sir. सर मैंने No, आज sir. ही साइन अप किया. सर अच्छा. मैंने Sir, किया I है. have seen. तो मैंने भी I किया. have seen how to set target. ठीक है. All right guys. तो शिवांश जी को थोड़ा हेल्प करेंगे और शिवांश जी का टारगेट सेट करेंगे. तो शिवांश, ऐसा करना है, what we have to do is, we have said that every 2 weeks we will finish 3 chapters, one of physics, one of chemistry, one of bio, correct? Yes, sir. है ना? तो हम 3 चैप्टर का टारगेट सेट कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि what does target setting mean. So I will click on this blue button, set target. When you go to neatprep.com, you log in, you go to home, you get this set target button. So 3 chapters. First chapter of chemistry. Shivansh, ये बताओ, are you going to some coaching? No, sir. Sir, I am just watching neat prep videos only. अच्छा, ओके, ठीक है. तो एक चैप्टर ये रख लेते हैं, पहला चैप्टर केमिस्ट्री का, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, करेक्ट? Yes, sir. ओके. बॉटनी, लिविंग वर्ल्ड, वेरी स्मॉल चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर. फिजिक्स, यूनिट्स एंड मेजरमेंट. Very big chapter, sir. हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, टाइम भी तो है. 112 घंटे क्या करोगे, जग थोड़ी मारोगे, है ना? तो गाइस, कैन यू सी दिस नेक्स्ट बटन एट द बॉटम, ब्लू बटन? Yes, sir. So click on this blue button and comes here. तो guys, एक चीज बताइए, whoever has set target, ये सामने घंटे किस चीज के लिखे होते हैं? What are these hours written there? सर सारा इंक्लूड करके, लाइक वीडियोस, क्वेश्चन प्रैक्टिस, एनसीईआरटी रीडिंग. कौन बोल रहा है ये? अनुश्री. अनुश्री जी. अनुश्री जी, आप कहाँ से हैं? सर फरीदाबाद. अच्छा, फरीदाबाद से, ठीक है. So guys, these hours that are written are for completing the chapter, right? Now I want to discuss with you what does completing a chapter mean. Okay? तो अपनी फ्रेंड नोटबुक को निकाल लेते हैं. Let us write down completing chapter means what? Completing chapter means finishing theory, like Anushri was saying, and practicing questions. सही बात है. Finishing theory means watch videos and take notes. Ananya, this also means if you are not watching videos and taking notes, which means you are going to coaching, someone is teaching you and you are taking notes. It's the same thing. Okay, sir. ठीक है?
जी सर. Or go to coaching and do the same thing. Someone teaches you, you take notes, and after that you read NCERT. And practicing questions, if you are practicing from neetprep.com, you select from NCERT filter. And after that you practice easy and medium questions. Sir, have you shared the screen? नहीं. तो एक बार आपको दिखा देता हूँ. One minute. एक मिनट पूछा ना. Let me talk first. So what does this from NCERT filter and all this thing means? So you go to course content, you go to questions. For example, you go to this first chapter, Living World. You selected this, you clicked on NCERT. This is the from NCERT filter. And then first you selected easy question. These are questions which more than 70% people got right. आपने ये practice कर लिए और उसके बाद आपने medium question practice कर लिए. These are questions which 50 to 70% students got right. Okay. तो एक बार वापस आ जाते हैं. This is what I was saying, guys. You have to finish theory and then you have to practice questions. There were two questions that were coming up. One question was, is joining some coaching, some online course required to crack NEET? I believe yes. You will not be able to manage it yourself. You require a structured course in which everything is going to be there. Video lectures आपको चाहिए, practice question चाहिए, mock test चाहिए, NCERT आप खुद खरीद के पढ़ सकते हैं. The other thing is, why that is required? आप इस बात को समझ लीजिए. यार, I keep talking in Hindi in between. I'll try and speak in English. So please understand this thing. Complete NEET exam is from NCERT. That is the first thing. Complete NEET exam is from NCERT. Now the question is, if the exam is from NCERT, why are we watching videos and taking notes? कोई जवाब दे सकता है? यदि सारा पेपर NCERT lines are tough to understand. बहुत ज़्यादा brief और complex words में लिखा है तो उनको समझना पड़ेगा. Can find the exact line very correctly. तो guys, आप ऐसे सोच लीजिए, घर में गीता पाठ होता है तो पुजारी को बुलाते हैं ना. क्यों बुलाते हैं? गीता में लिखा हुआ है सब कुछ. लिखा हुआ है कर्म करो, फल की चिंता मत करो. इंसान को 50 साल तक समझ नहीं आता, दौड़ता रहता है, फल के पीछे मेहनत करता नहीं है ना. So everything is written in NCERT, but it is written in a way that you will not be able to understand by yourself. That is why you have to first study the subject from someone, then read NCERT. ये चीज क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Guys, ये चीज समझ आ गई. पहली चीज ये. Second thing is, after finishing theory, you immediately have to practice questions. After finishing theory, you immediately have to practice questions. Problem is, a lot of people, वाह कितना अच्छा पढ़ा रहे हैं वीडियो में, पर फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते. The reality is, NEET exam is about application of this theory into 180 questions in 180 minutes. यदि आपने थ्योरी का एप्लीकेशन क्वेश्चन प्रैक्टिस में नहीं किया तो आपके 150 नंबर आ जाएंगे. बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे, रीडिंग करके चले जाएंगे किताब की, वीडियो देख के चले जाएंगे यूट्यूब से, पर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए, मॉक टेस्ट नहीं लिखे, ऐसी तैसी हो जाएगी उनकी. You will not crack NEET if you have not practiced questions after reading theory. Now you will say, sir, I can directly practice question. Why do I need to read theory? You will not be able to solve questions if you don't understand the theoretical basis of it. So first read theory and immediately practice questions. So completing a chapter means doing both these things. So in 2 weeks,
In 2 weeks, the 3 chapters that we have to do, for 3 chapters, we have to finish theory and we have to practice questions. समझ गए भाई लोग? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो अब जल्दी जल्दी फिनिश करते हैं, मेरा गला है ना जवाब देने वाला है चीख चीख के. All right, so we come back to this target. नहीं रुक जाओ. शिवांश शर्मा जी हो? Yes, sir. हाँ जी. All right, so Shivansh, what we have to do is टारगेट सेट कर लेते हैं आप. Yes, sir. हाँ, तो some basic concepts of chemistry. Let's say आप जहां से भी पढ़ रहे हैं, let's say Yes, sir. 6 घंटे के लेक्चर हैं. We have to watch videos and take notes. So while watching videos, you have to take notes. So that will take around 9 to 10 hours, right? कहीं पे लेक्चर है, आपने कोई वीडियो कोर्स ज्वाइन किया है, लाइव क्लास है, व्हाटएवर है, 6-7 आवर्स के लेक्चर है. While watching videos, you have to take notes. So 10 hours, 3 hours of NCERT reading, 7 hours of question practice. ज्यादा कर लेते हैं, चलो थोड़ा आप पहली बार पढ़ रहे हो, 25 घंटे सही है. Yes, sir. लिविंग वर्ल्ड 4 घंटे के लेक्चर, इट्स अ स्मॉल चैप्टर. You are taking notes, so while watching videos you are taking notes, so let's say 6 hours हो गए. 2 घंटे NCERT पढ़ लिया, it's a small chapter, and after that 5 hours of question practice. This should be enough. 13-14 hours, 15 hours you should be able to complete this chapter. Units and measurement, it's a slightly bigger chapter compared to other chapters, so let's say 13 hours of lectures, which means around 18 hours, 19 hours you'll take while watching videos, taking notes, 3 hours of NCERT reading, and 8 hours of question practice. क्या कहते हो भाई लोग, इतने टाइम में 3 चैप्टर खत्म किए जा सकते हैं? Yes, sir. Yes, What do you sir. think, guys? Yes, sir. हो जाएंगे पीसफुली? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, तो अब how do we find out whether we will be able to finish this in 2 weeks? शिवांश, कैसे पता चले? कर लोगे 2 हफ्ते में? Yes, sir. कैसे Yes, sir. पता? How do you know? It's just 70. It's just 70. Confidence. नहीं कॉन्फिडेंस तो बाद में आएगा यार. लॉजिक, the logic is 25 plus 15, 40 plus 30, 70. And how many hours were available with us? 112. सही बात है? Yes, sir. Yes, sir. तो guys, if you start following this schedule, this timetable, आप इसे रूटीन बोल लो, दिनचर्या बोल लो, 1-2 दिन में नहीं कर पा रहे, आप अपना माइंड और बॉडी, अपनी बॉडी क्लॉक को इसके हिसाब से सेट कर लो. अभी नहीं हो पा रहा, 1 हफ्ते में आप उस जगह पे पहुंच गए where you are able to consistently follow a timetable. What time you got up, what time you slept, what time you studied, what time you had food. आपकी जिंदगी सेट हो जाएगी बॉस. And not only for NEET, if you want to be a successful person in life, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनका टाइम टेबल होता है बॉस. और जो नालायक लोग होते हैं कभी भी उठते हैं, कभी भी सोते हैं, कभी भी गंद मचाते हैं. तो देख लो, दिस इज व्हाई आई वेंट इन दिस सीक्वेंस. हाउ मेनी चैप्टर्स वी आर ट्राइंग टू कंप्लीट? 3 चैप्टर्स इन 2 वीक्स. वेरी गुड. हाउ मेनी आवर्स डू वी हैव इन 2 वीक्स? 112 आवर्स. देन 3 चैप्टर्स रिक्वायर 70. चलो 80-90 आवर्स में कर लो. वी हैव 112 आवर्स, सो नाउ वी नो वी कैन इजिली फिनिश दिस. 14 दिन का हमने टारगेट सेट कर लिया. And then we set a target of 550 out of 720. और अब क्या होगा, यदि आपने neetprep.com पे ज्वाइन किया हुआ है तो आपको एक 8 जून को you will get a test. By the way, 8 June is my birthday. So 8 June 2021, you are going to get a test in which questions from these 3 chapters will be asked, and you will target to score 550. समझ गए भाई लोग? Yes, sir. Yes, sir. Also general. Excuse me, sir. हाँ जी. Sir, in your timetable, sir, there is no time for homework of school. ऑल वापस आ जाते हैं टाइम टेबल पे, ऐसा कैसे होगी?
ओके, हाँ जी। तो अभी तो स्कूल चल नहीं रहा। सर पर ऑनलाइन क्लासेस लग रही हैं। सर 3 to ऑनलाइन 4 क्लासेस लग रही है सर। चलो यार, इस पे आ जाते हैं, इस पे आ जाऊं। यस सर। Yeah. तो यहाँ पे 80 आवर्स आ रहे हैं ना, Yes, sir. और हमारे कितने घंटे आए थे वहां पे, 72. तो हो जाएंगे। यस सर हो जाए। Yes, sir. यस सर। Easily. और शिवांश, तुम कौन सा हर एक क्लास अटेंड करते हो स्कूल का? मैं जानता नहीं हूँ तुम लोग को अभी इस एज में। Hmm. भगवान ने एक चीज बनाई है जिसका नाम है, देखो बड़ा बड़ा लिख दूं, बंक। यस सर। सर एक क्लास अटेंड नहीं करेंगे तो सारा दिन का अटेंडेंस नहीं मिलेगा। हाँ, मैं नहीं कह रहा, students- मैं नहीं कह रहा कि आप ना करो, मैं बस ये कह रहा हूँ कि आप लोग है ना ऐसे सोचो कि मैं कभी स्टूडेंट नहीं रहा, तो ऐसा नहीं है ना। तो सर आप लोग ये, लेकिन वीडियो भी तो ऑन रहता है ना, दैट इज द प्रॉब्लम। अच्छा सॉरी सॉरी, मत करो बंक, आप सब लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट हो। द ओनली थिंग आई एम ट्राइंग टू से इज 80 आवर्स तो फिर भी है ना, Yes, sir. तो कर Yes, सकते हैं ना। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, Sir, we सर इज can. स्कूलिंग नेसेसरी? क्या सर इज स्कूलिंग नेसेसरी? So यार, एक मिनट एक मिनट एक मिनट गाइस, इस वाले क्वेश्चन का जवाब नहीं दे रहे, पहले आंसर दिस क्वेश्चन फॉर मी। यदि आपका स्कूल चल रहा है तो भी 80 आवर्स मिल रहे हैं ना? Yes, sir. Yes, सर sir. होमवर्क संडे में मैनेज कर सकते हैं। वही मैं कह रहा हूँ ना, तो हो सकता है ना। हम बहाने बनाए कि नहीं होगा फिर तो बात अलग है, पर मेरे हिसाब से तो मैनेज हो सकता है। क्योंकि सर एक दिन स्कूल नहीं रहता संडे के yes, दिन। sir. तो हो सकता है, मतलब बहाने नहीं बनाते हैं ना। और दूसरी चीज ये है, कोई मेरे से पूछ रहा है स्कूल नेसेसरी है क्या? So एक मिनट गाइस, लेट मी आंसर वन क्वेश्चन, इज स्कूल नेसेसरी? मुझे लगता है, आई पर्सनली फील, फॉर यू टू ग्रो अप इन अ ऑल राउंडेड फैशन, स्कूल के अंदर जो दोस्त हैं और स्कूल के अंदर जो टीचर्स वगैरह से इंटरेक्शन हो रहा है, मेरे हिसाब से यूजफुल है। नहीं तो आप जॉम्बी बन जाते हो, घर पे सारे टाइम पड़े रहते हो, कुछ नहीं करते, सोते हो। जब 80 आवर्स मिल रहे हैं हमें पढ़ने के लिए, तो स्कूल का भी देख लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, बढ़िया टाइम पास हो जाएगा। नहीं, मेरा माय ओपिनियन इज यू शुड डू स्कूल। अब आपको नहीं करना आपकी मर्जी है, बट माय ओपिनियन इज यू शुड डू स्कूल एंड यू कैन डू स्कूल इजिली। बाय द वे, जो टॉपर्स होते हैं, कोई पूछा था एम्स दिल्ली वगैरह, एम्स दिल्ली का जो ऊपर वाले लोग हैं, सबके सब स्कूल से आ रहे हैं, कोई डमी स्कूल से नहीं आ रहा। तो उससे लगता है कि स्कूल भी किया जा सकता है। ठीक है गाइस, so what I was saying was just listen to me and then I will ask, I will let you ask questions. So आपको समझ में आ गया कि ये टारगेट का क्या फायदा है? द बेनिफिट ऑफ दिस टारगेट इज, यदि मैं आपकी जगह पे हूं, इफ आई एम सीरियस अबाउट नीट प्रिपरेशन, व्हाट आई विल डू इज, एक बार मैंने टारगेट सेट कर लिया, आई नो दैट आई हैव टू फिनिश 3 चैप्टर्स इन 2 वीक्स। नाउ आई विल नॉट वरी अबाउट रिमेनिंग 93 चैप्टर्स। जैसे कोहली परेशान नहीं होता ना, जिस ओवर में खेल रहा है बस उसी की चिंता है, इस ओवर में 10 रन बनाना है, आई हैव टू स्कोर 10 रन्स इन दिस ओवर। आई डोंट वरी अबाउट रिमेनिंग 19 ओवर्स। सिमिलरली, एक बार आपने टारगेट सेट कर लिया, आपको पता है 2 हफ्ते में 3 चैप्टर खत्म करूंगा तो नीट का सिलेबस आराम से हो जाएगा। अब आप इन 3 चैप्टर्स के अलावा बिल्कुल मत सोचो कुछ भी, और आप ये सोचो कि मुझे इन 3 चैप्टर का किंग कॉन्ग बनना है, इसमें से कोई भी सवाल आए मैं कर दूंगा। इस तरह से पढ़ना है 2 हफ्ते में। ये नहीं कि कभी यूनिट मेजरमेंट पढ़ रहे हैं, कभी एनिमल किंगडम पढ़ना चालू कर दिया, कभी स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ना चालू कर दिया। बंदर की तरह इधर उधर घूमना नहीं है, इन 3 चैप्टर पे फोकस रखना है और इनका किंग कॉन्ग बनना है। और 3 चैप्टर का इनके एंड पे आपको टेस्ट मिलेगा 8 जून को, उसमें अच्छा स्कोर करना है, आपको जबरदस्त कॉन्फिडेंस आ जाएगा। लॉट ऑफ यू स्ट्रगल विद दिस प्रॉब्लम कि सर पढ़ तो रहे हैं, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? आपने 3 चैप्टर पढ़े, 8 जून तक पढ़ लिए, 8 जून को अच्छी तरह रेडी होकर टेस्ट दिया और टेस्ट में अच्छा स्कोर आ गया। मेरा बच्चा क्लास 7th में है अभी, पहले जब वो स्कूल जाता था, अभी तो 1-1.5 साल से स्कूल नहीं जा पाया, तो जब भी वो कुछ काम करके ले जाता था, टीचर अच्छा काम करता था 5 स्टार बनाती थी और एक्सेलेंट लिख के दे दी थी, आके दिखाता, देखो पापा टीचर ने क्या, खूब हैप्पी, मतलब एकदम चौड़ा होके चल रहा है।
तो आपको भी वही कॉन्फिडेंस मिल जाएगा जब आप टेस्ट लिखेंगे रेगुलरली। तीन चैप्टर का टारगेट बनाया, अच्छी तरह रेडी किया, थ्योरी पढ़ ली, क्वेश्चन प्रैक्टिस किया और उसके बाद उसका टेस्ट लिख दिया। आपको वहां से अपने वीक एरिया भी पता चल जाएंगे जिसपे आपको वापस टेस्ट पेपर कहाँ से मिलेगा? अपने आप जनरेट हो जाता है वहां पे 2 हफ्ते बाद। 8 जून को वहां पे जब शिवांश वापस आएगा तो he'll find a टेस्ट पेपर देयर। मैजिक है। एक्सक्यूज मी सर, सर हम लोग ने जो ये टारगेट सेट किया है इसमें एक ऑप्शन आता है क्रिएट डीपीपी, तो वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद वो हमें अलग से और क्वेश्चंस प्रोवाइड करता है या वो किस चीज का ऑप्शन है? वो क्वेश्चन बैंक से अंदर से टॉपिक वाइज क्वेश्चन दे देता है। तो डीपीपी वाला जो ऑप्शन है वो आपको टारगेट के साथ यूज नहीं करना। व्हेन यू हैव सर रिटन खत्म होने के बाद एक रिवीजन के लिए कर सकते हैं? रिवीजन के लिए कर सकते हैं, एग्जैक्टली आप समझ गए। तो व्हाट वी हैव टू डू इज वंस वी हैव सेट अ टारगेट, आपने 8 जून को टेस्ट दिया लिखा और फिर आपको पता चला कि एरर एनालिसिस में आपकी हवा निकल गई, तो आपने क्या किया, नेक्स्ट टाइम आपने यूनिट्स एंड मेजरमेंट को भी टारगेट में ले लिया और उसमें एरर एनालिसिस के डीपीपी सॉल्व कर लिया और वो भी टेस्ट में आ जाएगा जब आप नेक्स्ट टारगेट में लेंगे। समझ गए? यस। और सर ऐसा कर सकते हैं कि टेस्ट देने से पहले हम एक डीपीपी की प्रैक्टिस करें? आपकी मर्जी है, पर डीपीपी में जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बैंक से निकाले जा रहे हैं, अलग से नहीं निकाले जा रहे हैं। ओके सर। अच्छा गाइस, तो एक मिनट गाइस, एक मिनट। उसके बाद वन फाइनल थिंग लेट मी से एंड देन यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस। आप सब लोग के पास मेरा फोन नंबर है? ऑल ऑफ यू हैव माय फोन नंबर? नो सर। नो सर। आप हमारे YouTube चैनल पे हो? नो सर। No, sir. Yes. No, sir. देखो ये हमारा YouTube चैनल है, इसके सबसे ऊपर ये लिखा हुआ है, ये मेरा नंबर है 9667591930। ठीक है, आप नीट प्रेप सर्च करेंगे YouTube पे, आपको सबसे पहले ये नीट प्रेप कोर्स दिख जाएगा, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और आप इस जगह पे पहुंचेंगे। इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ना। तो ये रहा मेरा नंबर 9667591930। तो मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, इफ यू थिंक दिस टारगेट बेस्ड थिंग इज यूजफुल फॉर यू, आप लोग टारगेट सेट करके इसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे व्हाट्सएप कर देंगे। और यदि आपको लगता है नहीं यार किसी और तरीके से अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लेंगे, दैट इज परफेक्टली ओके। पर यदि आपको लगता है हाँ इस तरह से पढ़ना है, इस तरह से छोटे छोटे टारगेट सेट करके आगे बढ़े जाना है, हर ओवर में 10 रन बनाना है, तो आप ये टारगेट सेट करके मुझे एटलीस्ट पहले टारगेट का स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, हर एक का मत भेजिएगा, जिससे मुझे आइडिया लग जाए कि हाँ आप लोगों को समझ में आया और आप लोगों ने इस चीज को कर लिया है। ठीक है सर, आई वांट टू आस्क वन थिंग। चलिए गाइस, तो एक सेकेंड रुक जाओ। तो दिस इज व्हाट दिस कॉल वाज अबाउट, 3 थिंग्स मैंने आपको बताया। 2 हफ्ते में 3 चैप्टर, आपका डेली टाइम टेबल क्या होना चाहिए और टारगेट कैसे सेट करना है। नाउ वॉट एवर क्वेश्चन यू हैव, एक एक करके आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो कौन पूछा है सबसे पहले? एक सेकेंड। मोहम्मद आतिफ, क्या नाम है आपका? मोहम्मद आतिफ, बोलो। सर मोहम्मद सर कि ये सर सिलेबस तो सबका कंप्लीट हो ही जाता है, लेकिन रिवीजन सही से नहीं हो पाता है, तो सर कैसे रिवीजन? नहीं ऐसा नहीं है आतिफ, सुनो मेरी बात सुनो। पहली चीज, सिलेबस सबका नहीं होता है, मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूँ। 14 लाख पीपल will go into NEET exam without completing that syllabus out of 16 lakh people. ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है, रिवीजन का तरीका क्या है। हम सिलेबस खत्म करते जाएंगे, आपने अगला टारगेट सेट किया और अगले टारगेट में यदि आपको लगता है पीछे वाला कोई चैप्टर आप भूल जा रहे हैं तो उसको भी इंक्लूड कर लीजिए। सो लेट्स से आपके नेक्स्ट टारगेट में आपने मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन रख लिया, स्ट्रक्चर ऑफ एटम रख लिया और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन रख लिया। अब आपको डर लग रहा है कि यार यूनिट्स एंड मेजरमेंट की चीजें मैं भूल जाऊंगा, तो आपने यूनिट्स एंड मेजरमेंट भी रख लिया और उसके लिए 5 घंटे दे दिए, वो आपको टेस्ट में मिल जाएगा, आपने उसे रिवाइज कर लिया। तो चैप्टर कंप्लीशन और रिवीजन साथ में चलता रहेगा, क्योंकि आपको हर टारगेट के एंड पे टेस्ट मिल रहा है। और टेस्ट की वजह से आपको डर लगेगा कि टेस्ट में पिटाई ना हो जाए, तो आप थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे जो भी टेस्ट में चैप्टर आ रहा है। करेक्ट? एक्सक्यूज मी सर, एक सेकेंड। हाँ अनुश्री पूछो।
सर हम लोग टेस्ट मतलब कोई ऐसा कोई मिनिमम स्पेसिफाइड टाइम है या किसी भी फ्रीक्वेंसी से ले सकते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल हमने अपने 2 टारगेट्स अचीव कर लिए पहले 6 चैप्टर्स करके, तो ऐसा कर सकते हैं कि 1 वीक का ब्रेक लेके उसमें हम 6 चैप्टर्स का एक रिवीजन टेस्ट करें? कोई प्रॉब्लम। ओके सर। गाइस देखो सुनो, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। यदि आपको लगता है कि कोई आपकी उंगली पकड़ के आपको गवर्नमेंट कॉलेज पहुंचा देगा, तो वो नहीं होगा। मेहनत आपको ही करनी है, राइट? मैंने आपको एक ब्रॉड डायरेक्शन दे दिया है, आपको मैंने एक ब्रॉड फ्रेमवर्क बता दिया है। यदि आपको लगता है कि कपिल सर के साथ 2 जूम कॉल और अटेंड कर लूंगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं हर जूम कॉल में सेम ही चीज बताता हूं, बिकॉज दिस इज ऑल यू नीड फॉर ऑर्गेनाइजिंग योर स्टडीज। आपका डेली टाइम टेबल क्या होना चाहिए, आपका चैप्टर कंप्लीशन रेट क्या होना चाहिए, और माइक्रो टारगेट कैसे सेट करना है। अब आपको नहीं करना ये सब, अपनी मर्जी से जिंदगी बितानी है तो परफेक्टली फाइन, और करना है तो कर लो। बट आपको जो भी चाहिए अपने दिन को ऑर्गेनाइज करने के, आपको अपनी स्टडीज ऑर्गेनाइज करने के लिए, ऑल ऑफ दैट आई हैव एक्सप्लेन टू यू इन दिस कॉल। सर ये गवर्नमेंट स्कूल या सीबीएसई स्कूल होना जरूरी है? जैसे गवर्नमेंट से रह के पढ़ा जा सकता है? हाँ बिल्कुल, पर एक चैलेंज है। आई बिलीव दैट एक्चुअली 2 चीजें मैं आप लोग को रेकमेंड करूंगा। एक तो प्लीज मैथ्स मत लेना 11th में। बहुत सारे लोग आपको कहेंगे योर फिजिक्स विल बिकम इजी इफ यू टेक मैथ्स। दोज पीपल डू नॉट नो नीट एग्जाम। नीट एग्जाम के लिए, फिजिक्स के लिए आपको मैथ्स में 3 चीजें चाहिए। एक वेक्टर चाहिए, एक कैलकुलस चाहिए, और एक ट्रिग्नोमेट्री चाहिए जो 9th-10th लेवल की है, जो आपने हाइट्स एंड डिस्टेंसेस और बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े थे। ठीक है, उसके लिए आपको 30 चैप्टर्स ऑफ 11th एंड 12th, जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स और सेट थ्योरी और 3D और बाइनोमियल थ्योरम और दुनिया भर की लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी नहीं करने की जरूरत है। सो माय एडवाइस, प्लीज मैथ्स लेने की जरूरत नहीं है। 20-25 घंटे के वेक्टर्स, कैलकुलस पढ़ के आपको जो फिजिक्स के लिए मैथ चाहिए वो आ जाएगी। दूसरी चीज मैं आपको रेकमेंड करूंगा, प्लीज यदि आप हिंदी मीडियम से इंग्लिश में शिफ्ट कर जाइए। दुखी हूं हिंदी मीडियम में अच्छे कोर्सेज नहीं है, और दूसरा एमबीबीएस में तो सब कुछ अंग्रेजी में होता है। एमबीबीएस लेवल पे कोई भी किताब हिंदी में नहीं, तो अभी झेल लो उसे, हिंदी से इंग्लिश में शिफ्ट कर जाओ। Excuse me. Yes, Krishna, tell me. Sir, as you told that coaching is really important, but if someone can't afford coaching, then what should they do? Please, sir, can you guide something that how should I prepare if I can't join any coaching? Krishna, the thing is, there are reasonably priced online courses available. I'm not ready to believe that for 2 years you can't spend 20,000-25,000 rupees. It becomes very, very difficult to prepare without some support system. So that is going to be my answer. Otherwise, if you want to try without coaching, you will find out after writing the exam that it was a bad idea. तो मैं तो आपको ये रेकमेंड करूंगा, यू शुड ट्राई एंड फिगर आउट सम वे सो दैट यू कैन जॉइन सम कोर्स। आप कुछ भी ज्वाइन कर लीजिए, पर एक रीजनेबल ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर लीजिए प्लीज। देयर आर रीजनेबली प्राइस कोर्सेज अवेलेबल। एक्सक्यूज मी सर। अंकिता बोलो। Yes, sir. I join local coaching centers, but people here try to say us that like quota coaching classes are good. Means we can crack NEET if we go for that quota coaching classes. Means I am from sir. एक मिनट गाइस। अंकिता, तो आपका क्वेश्चन है कि लोकल कोचिंग सेंटर में जाना है या कोटा या दिल्ली वगैरह? Is it okay to join local coaching centers? देखिए, डिपेंड करता है अंकिता। द वे टू चेक इज वेरी सिंपल। यदि आप क्वेश्चन जब प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपके क्वेश्चन ठीक हो जा रहे हैं, है ना, तो आपका लोकल कोचिंग सेंटर इज गुड। यदि क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे तो गड़बड़ है, इसका मतलब आपको अच्छी तरह पढ़ाया नहीं जा रहा। And if we go for stand from where we can practice just questions, go for practicing. Means we in hostel they don't allow mobile phones and all.
यार तो वो तो अब मैं उसका क्या बोलूँ, आप फिर कोई भी बुक खरीद लीजिए, बट यदि आपके पास डिवाइसेस नहीं है, बिना डिवाइसेस के लिए तो आपको डिसएडवांटेज है तैयारी करने का। मतलब ये हॉस्टल वाली चीज मुझे समझ ही नहीं आती, तो आई डोंट नो द आंसर टू दिस क्वेश्चन। आप कोई भी बुक या मॉड्यूल ले लीजिए और उससे पढ़ लीजिए। हाँ शिवानी। Excuse me, sir. हाँ शिवानी। My question is that Guys, like, 1 minute. with the 1 constant- minute. एक मिनट। हाँ शिवानी। So my question is that with consistency and discipline, schedule we go through aims also. हाँ शिवानी, मैंने इसका जवाब पहले दे दिया, बिल्कुल। अमित कुमार, क्या सवाल है आपका? भाई मेरी आवाज एको हो रही है क्या? हाँ अमित बोलो। अमित कुमार सवाल पूछो। Excuse me, sir. अमित Excuse कुमार me, का sir. ऑडियो हो गया है। Excuse me, sir. Excuse me, sir. हाँ Excuse me, sir. एक सेकेंड, देवी आशा पूछो। देवी आशा शुक्ला पूछो। Sir, the doubt is that some students crack JEE and NEET both at the same year. So how they manage that? I want to know. I don't want to answer this question. आप मेरे से ये कह रहे हो सर मैं मैथ्स ले लेता हूँ और मैं जेई और नीट दोनों देना चाहता हूँ। यदि आप जेई और नीट दोनों लेना चाहते हैं, आप बिल्कुल मैथ्स ले लीजिए, पर मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। यदि आपको सिर्फ नीट क्रैक करना है, जेई नहीं देना, तो मैथ्स मत लो। पर यदि आपको जेई और नीट दोनों देना है तो मैथ्स लेना पड़ेगा, राइट? Yes, sir. ठीक है। तो अगर कोई नीट प्रेप का कोर्स नहीं लिया है तो क्या वो सेट करके टेस्ट दे सकता है? आपको टेस्ट का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, तो आपके पास नीट प्रेप के कोर्स में 2 ऑप्शंस है आपके पास। गाइस 1 मिनट म्यूट कर लीजिए प्लीज। एक मिनट, अभी ठीक आ रही है मेरी आवाज? Yes, sir. हाँ सर। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपके यहाँ नीट प्रेप में 2 ऑप्शन है। यू कैन जॉइन अ फुल कोर्स। It's coming from Amit Kumar speaker. Yes, sir. अमित, थैंक यू। हाँ, तो व्हाट आई एम सेइंग इज, यदि आपको नीट प्रेप का कोर्स ज्वाइन करना है तो आपके 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कैटलिस्ट बैच है, जिसके अंदर यू गेट एवरीथिंग एक्सेप्ट वीडियो लेक्चर्स एंड डाउट सॉल्विंग, जिसके अंदर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट, टारगेट सेटिंग वगैरह मिलता है। दूसरा ऑप्शन है जो फुल कोर्स है, जिसके अंदर आपको वीडियो लेक्चर्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट, डाउट सॉल्विंग वगैरह मिलता है। तो आप इन 2 ऑप्शन में से एक सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि आपने दोनों ऑप्शन सेलेक्ट नहीं किया है तो आप टारगेट सेट कर सकते हैं, पर जब आप टेस्ट देंगे तो टेस्ट के आपको एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेंगे, पर आप टारगेट सेट कर सकते हैं यदि आपने कुछ भी ज्वाइन नहीं किया है neetprep.com पे, बट यू विल नॉट गेट एक्सप्लेनेशन ऑफ द टेस्ट। Excuse me, sir. एक सेकेंड, तो जिसने सवाल पूछा था जवाब मिल गया है? यस सर। चलिए, हाँ शिवांश पूछो। Sir, is it compulsory for a NEET aspirant to have a personal mobile phone? यार चक्कर यह है कि गर्लफ्रेंड बन गई तो कैसे बात करोगे? नहीं, मैं मजाक कर रहा हूं यार। मेरे हिसाब से मोबाइल फोन का फायदा और नुकसान दोनों है, और जो लोग डिसिप्लिन के साथ मोबाइल यूज नहीं कर सकते, दे डोंट डिजर्व टू बी इन अ मेडिकल कॉलेज। मेरे हिसाब से टेक्नोलॉजी के थ्रू, जैसे मैं आपको हमारा ऑनलाइन क्वेश्चन बैंक दिखा रहा था, टेक्नोलॉजी के थ्रू जिस टाइप की चीजें अवेलेबल हैं वो आपको फिजिकली नहीं मिल पाएंगी। तो उसमें क्या है, अब आप कहोगे सर मैं मोबाइल पे जाता हूं तो नेटफ्लिक्स खोल लेता हूं, अमेजॉन खोल लेता हूं, इंस्टाग्राम खोल लेता हूं, ये करता हूं, वो करता हूं, तो वो तो आपकी प्रॉब्लम है ना। मतलब लाइक एनीथिंग एल्स इन लाइफ, मोबाइल का फायदा भी और नुकसान भी है। आप डिसिप्लिन के साथ यूज करेंगे, मेरे हिसाब से मोबाइल इज एक्सट्रीमली यूजफुल। आप में डिसिप्लिन नहीं है तो बाबा आदम के जमाने की तरह करो तैयारी। Excuse me, sir. एक सेकंड रुक जाओ शिवांश, मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया? Yes, sir. ठीक है, साहिल बोलो।
सर अगर हमने 11th 12th NIOS से कंप्लीट किया तो फिर वो नीट के लिए एलिजिबल है सर? हाँ, उसपे सुप्रीम कोर्ट का स्टे लगा हुआ है, उस वजह से आप एलिजिबल हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू Excuse me, sir. हाँ वैष्णवी बोलो। Ma'am, sir, sorry. Is logarithm integration and differentiation is important for physics? In general, log does not have application in physics. It is more applicable in chemical kinetics and chemistry in one chapter, right? And differentiation, integration would generally, and vectors would generally be required in almost every chapter in physics. Okay, sir. Thank you. Okay. Sir, excuse me. Oh, I have doubt. 1 minute. हाँ धनुष बोलो। So you on your YouTube channel you made videos for 2022 aspirants who wasted their class 11th. What do you think the main reason is? Like, what should we avoid? Is it because the main thing is discipline of not maintaining a routine? How many people were sitting here when we started? 100. How many people Yes, are sir. sitting here right now? 68. 100. How many Yes, sir. people are sitting right now? 68. What happened to remaining 32? They vanished. Bored. got bored, distracted. हाँ, तो चीज वही है कि देखो यार, let me be very very clear. Daily discipline, hard work, consistent studies, ये आराम से नहीं होगा. It is not going to be easy. ठीक है? आपकी बॉडी इस समय पे उस एज पे है जहां पे बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं. आपको गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है और आपको एक्साइटमेंट भी बहुत जल्दी होता है, और आपको लाइफ में आसपास भी बहुत एक्साइटिंग चीजें दिख रही होंगी, और उसके बीच में स्टडीज माइट नॉट बी द मोस्ट एक्साइटिंग थिंग. तो ये डिसिप्लिन आराम से नहीं आएगा. दैट इज व्हाई अ लॉट ऑफ पीपल जो 11th से 12th में गए उनका 11th खराब हो गया. आप डिसिप्लिन रख लेंगे तो आपका खराब नहीं होगा. 2 हफ्ते में 3 चैप्टर, सोचो, डेली का 4 से 5 घंटे, इनफ. इतना तो कर सकते हैं, पर डेली की बात हो रही है, ये नहीं कि So if we maintain a discipline routine, so we can get into the 2 lakh category, right? Out of 16 lakhs. करेक्ट. और 2 लाख में से 40,000 का सिलेक्शन हो जाएगा. Okay, sir. चलो. सर हाँ जी करिश्मा जी बोलिए. सर अगर मतलब जैसे आपने बोला है कि कोई 5 आवर्स पढ़ ले वो इनफ है, पर मतलब कोई जिसका टाइम फिक्स ना हो, कि वो मतलब सोने और उठने का टाइम फिक्स है पर खाने पीने वाला टाइम फिक्स नहीं है, पर वो पढ़ रोज 6 घंटे रहा है या फिर 5 घंटे रहा है, तो हो जाएगा? करिश्मा क्या होता है, हो जाएगा, थ्योरेटिकली हो जाएगा, प्रैक्टिकली होता नहीं है. आपकी बॉडी जो है ना, एक बार जब बॉडी क्लॉक बन जाए ना कि हर रोज 8 बजे उठते हैं, तो उस बॉडी दैट बॉडी विल आस्क यू टू स्टडी एट 9 o'clock. यदि आप हर रोज 9 बजे पढ़ती हैं, ठीक है, वो अपने आप है ना, रात को 12 बजे यू विल स्टार्ट फीलिंग स्लीपी एंड यू विल हैव अ साउंड स्लीप ऑफ 7 hours. तो उस हिसाब से वो जो टाइम टेबल है ना, उसका फायदा होता है. आपकी बॉडी है ना, इट स्टार्ट्स गेटिंग यूज्ड टू दैट टाइम टेबल. नहीं सर, मतलब ऐसा होता है कि कुछ टाइम पर हमारी जो स्कूल की क्लासेस और जो कोचिंग की है वो टाइम चेंज हो जाता है. करिश्मा देखो क्या है, मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया. अब इसके बाद यदि आप नहीं सुनना चाहती या नहीं समझना चाहती, वो आपकी मर्जी है. बट आप जो कह रही हैं वो मैं समझ रहा हूं, और मैं जो कह रहा हूं वो आप समझ जाइए. आपकी बॉडी क्लॉक आपकी सबसे बड़े साथी है. आपकी बॉडी क्लॉक में ये हो गया कि आप बिना अलार्म क्लॉक लगाए, विदाउट पुटिंग एन अलार्म क्लॉक, यू आर एबल टू गेट अप एट 8 o'clock. तो मामला सही हो गया है. रात को 12-1 बजे अपने आप यू फील एक्सट्रीमली स्लीपी एंड यू हैव अ वेरी साउंड स्लीप ऑफ 7 hours. तो आपकी बॉडी क्लॉक सेट हो गई है चीजों के लिए. Sir, I'm able to wake up at 5:30. वो ठीक है. तो मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर दे दिया. नाउ एट द एंड ऑफ इट अल्टीमेटली मैंने आपको बता दिया. अब उसके बाद आपको जो कंफर्टेबल लगे उसके हिसाब से आप कर सकते हैं. मतलब ऐसा थोड़ी है कि आप नहीं करेंगे जो मैं जो मैं कह रहा हूं, तो मैं आपके पीछे पड़ जाऊंगा, ऐसे थोड़ी है. अब जो आपको ठीक लगता है वो करिए. Excuse me, sir. हाँ जी.
सर एक्सपेक्टेशंस को कैसे रोकें? यार फालतू सवालों का जवाब नहीं दे रहे, मतलब है ना, छोटे बच्चों वाली बातें मतलब। हाँ गाइस, एनी अदर क्वेश्चन? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर, जैसे आपने बोला कि हमारी बॉडी यूज्ड हो जाती है, तो हमें जैसे 3 घंटे का पेपर होता है, हम 3 घंटे की स्टडी का शिफ्ट्स लगाएं या फिर 1-1 घंटा स्टडी करें? मेरे हिसाब से इतना फर्क नहीं पड़ता इन माय माइंड। अच्छा गाइस, बाय द वे, भूमि ने जो क्वेश्चन पूछा है उसमें मैं एक चीज जरूर बोलना चाहता हूँ। ये मेरे से मिस हो गया। जब मैंने यहाँ पे बोला ना क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, तो कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करें? फिजिक्स केमिस्ट्री चैप्टर है तो 100 to 150 क्वेश्चंस इंक्लूडिंग पास्ट ईयर क्वेश्चंस, है ना। और बायो चैप्टर है तो 200 to 250 क्वेश्चंस इंक्लूडिंग पास्ट ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना। सर एक मिनट रुक जाओ। आई एम नॉट आंसर्ड भूमि, मैं भूमि के सवाल का जवाब देता हूँ। तो भूमि देखो, द आंसर टू योर क्वेश्चन इज व्हेन यू आर स्टडीइंग, कई बार क्या होता है आप लोग के साथ हुआ होगा कि आपने किताब खोली हुई है, पन्ने पलट रहे हो, पर दिमाग कहीं और है। किसी दोस्त के साथ, दोस्त ने कोई बहुत फंडू जोक भेजा था व्हाट्सएप पे, कुछ चल रहा है दिमाग में, और पढ़ाई में दिमाग नहीं है। तो व्हाट आई वुड रेकमेंड इज, पहली चीज तो लेट के नहीं पढ़ना, कुर्सी टेबल पे बैठ के पढ़ना। दूसरी चीज, यदि आपको पढ़ते समय लग रहा है कि आप डिस्ट्रैक्ट हो गई है, फोकस नहीं है पढ़ने के ऊपर, पढ़ रही है तो सिर्फ पढ़ाई के ऊपर होना चाहिए, तो इमीडिएटली कुर्सी से उठ जाइए। चाहे आप आधा घंटे पढ़िए, चाहे आप 2.5 घंटे पढ़िए, तो कोई वो फिक्स नहीं है कि 3 घंटे आपको पढ़ना है और पढ़ने में दिमाग नहीं लग रहा। You should have a sitting as long as you are absolutely focused towards studies. पढ़ते समय दिमाग में कुछ और नहीं होना चाहिए और मस्ती करते समय दिमाग में पढ़ाई नहीं होनी चाहिए, दोनों को मिक्स नहीं करना। आपको पढ़ते समय डिस्ट्रैक्ट हो गई हो तो इमीडिएटली उठ जाओ, पानी पियो, घूम घाम के आ जाओ, फिर वापस पढ़ने बैठ जाओ। तो मैं हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बोलूंगा। यदि आपका फोकस 1 घंटे रहता है ठीक है, आपका फोकस 2 घंटे रहता है ठीक है, पर जितने टाइम फोकस रहता है उतने टाइम की सिटिंग होनी चाहिए। ओके सर। सर आप वो पेज वापस दिखाएं जिसका क्वेश्चंस बोले दिखाए वो। गाइस एक मिनट, ये लो भाई साहब। थैंक गाइस सुनो, सर एक मिनट गाइस, मेरी बात सुनो। आई थिंक आई हैव आंसर्ड मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस, तो मुझे अब जाने दो। माय थ्रोट इज रियली हर्टिंग नाउ। मेरा टारगेट 1 घंटे की कॉल का था। होपफुली आई वाज एबल टू आंसर अ लॉट ऑफ योर क्वेश्चंस और आपके लिए सेशन यूजफुल रहा। मैं आपको बस एक फाइनल चीज यही बोलना चाहता हूँ, ये एग्जाम आपका पासपोर्ट है बेहतर जिंदगी का। आप में से बहुत सारे लोग जो छोटी जगह से हैं, आपका सपना रहा है कि खुद के लिए कुछ बड़ा करें, अपने घर वालों के लिए कुछ बड़ा करें। दिस इज योर अपॉर्चुनिटी। प्लीज ये 2 साल जो ये फोकस डिजर्व करता है, जो डेली डिसिप्लिन, मैं ये नहीं बोल रहा ज़ॉम्बी बन जाओ, पागल हो जाओ, मेरी नसों में नीट बहता है, मेरा दिल फाड़ के देखोगे वहां पे नीट लिखा होगा, वो सब बात नहीं हो रही है। ठीक है, कुछ लोग ऐसे डायलॉग भी मारते हैं, फोड़ देंगे, जान से मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। कुछ नहीं, शांति से पढ़ाई करनी है इन अ वेरी पीसफुल मैनर। और ये सोच लेना है, अपने आसपास देख लो। मैं जिस जगह पे पैदा हुआ था 1.5 कमरे का घर था, 1 कमरा और एक और छोटी सी जगह थी जहां पे बाथरूम किचन होता था। 1 कमरे के बीच में पर्दा टंगा हुआ था जिससे वो बेडरूम और ड्राइंग रूम में कन्वर्ट हो जाए। और वहां से मैं MBA के टाइम पे हॉलीवुड में रहता था और किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ी। उस टाइम पे पिताजी ने कुछ पैसे खर्च करके कोचिंग वगैरह ज्वाइन करा दी थी जयपुर में, सिलेक्शन हो गया। और उसके बाद आप इमेजिन नहीं कर सकते, आई हैव सीन द कंप्लीट वर्ल्ड। पर उस सारी चीज की शुरुआत 11th-12th से हुई है। तो मैं आपको बहुत स्ट्रांगली ये चीज बोलना चाहता हूं, आप यदि अपना टाइम पास कर रहे हैं, इफ यू आर नॉट स्टडीइंग,
ये जो डेली के आवर्स हैं, इफ यू आर नॉट फोकस्ड टुवर्ड्स योर टारगेट, 2 हफ्ते में जो टारगेट टेस्ट लिखना है, आप ये देख लो कि आप एक डेलिबरेट चॉइस ले रहे हो सड़ी हुई जिंदगी के लिए। ये हिंदुस्तान है, यहाँ पे हर जगह पे लाइन लगी मिलेगी, नथिंग इज इजी। आप मेहनत नहीं करोगे तो हमने इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है हमारे यहाँ पे 130 करोड़ पीपल कि कोई चांस नहीं है। बेहतर जिंदगी की शुरुआत इस जगह से होती है, और आपको एक बार मेहनत करने की आदत पड़ गई अभी और आपने नीट क्रैक कर दिया तो आप इतना आगे जाओगे आपको आइडिया नहीं। और आपने नहीं मेहनत किया तो जिंदगी भर ना सड़क पे धक्के खाओगे। ठीक है, इतनी सी बात है। आप अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हो, यू आर ट्राइंग टू क्रिएट एन आइडेंटिटी फॉर योरसेल्फ। आपकी आज कोई आइडेंटिटी नहीं है, इस एग्जाम के बाद आपकी आइडेंटिटी हो जाएगी। जब मेरा आईआईटी में सिलेक्शन हो गया था तो बोलते थे कपिल के पिताजी हैं, और बड़ा उनका सीना चौड़ा हो जाता था कि वाह बेटे ने कुछ कर दिया। और उससे ज्यादा खुशी की चीज नहीं होती आपके पेरेंट्स के लिए और आपके लिए। तो इस बात का ध्यान रखना गाइस। बाकी सारी चीजें आप फिगर आउट कर लोगे, बट इस सीरियसनेस के साथ आपको अप्रोच करनी है अपनी पढ़ाई। ठीक है गाइस? यस सर। Sir, my last question. मत पूछो यार, बाकी सारी चीजें अब आप फिगर आउट। Sir, I have done any question. It's my first question. अरे वो बात नहीं है, ऐसा थोड़ी है कि बाकी लोगों ने आपके क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। तो कुणाल रहने दो, मैंने बहुत बड़ी बात बोल दी है अभी, तो वहां पे खत्म करते हैं। आप लोग मुझे अपना टारगेट का स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप कर दीजिएगा, और आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा गाइस। बट याद रखना, मर्जी है आपकी, आखिर जिंदगी है आपकी। ठीक है, थैंक यू सर। चलिए गाइस, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। Thank you, sir. Thank you. बाय बाय। Thank you, sir. Bye. Thank you, sir.